Welcome everybody. Hello. So how was yesterday's task? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कल का टास्क के बारे में जो हमने हैव अ मैजिकल डे? सो वो आप आज के लिए भी कर सकते थे। लाइक कल शाम को अगर आपने आज का जो भी आपको करना है उसके लिए आपने अगर लिस्ट बनाई हो, या आज सुबह जब आपको पता है कि ये काम करना है तो उसके लिए भी आप कर सकते थे। सो एनीबॉडी जिसने किया और कोई आउटकम आपको दिखा? Yes, I will like to share. Yes, please do. Yeah. So what happened is that my daughter had a French exam and in which she was supposed to get an image and she was supposed to speak on it for 2 minutes. And of Okay. course, French is a new subject for her, so she was very, very apprehensive. So Hmm. when I did learnt about the task day before that say thank you, thank you, thank you, and before only you visualize whatever you want. So I told her that you write it in a paper and you visualize. First I asked her what do you want, so she told me that she wants an image of a family sitting around a table having meal and they're all happy together. I said fine, write this, imagine, and keep it on your board and keep imagining. And even I did it for her, and it was eerie the moment that teacher opened the screen for the test. There was this image of this family sitting on a table eating meal, and they were all happy and she was already prepared for it. So it was so easy. Yes, I mean, this is magical. I mean, what else can you say? What you actually visualize, you manifest it. So you're understanding what happened here. Family, यानी दोनों इंसान ने मिल के उसको विजुअलाइज किया, तो पावर बढ़ गया, Right. राइट? सो ऑफ कोर्स जितना आप क्लियर रहते हो, सो द चाइल्ड, मतलब इनकी डॉटर, शी वाज आल्सो वेरी क्लियर कि उसे क्या चाहिए. सो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए हम लोगों को ड्रीम लिस्ट बोला गया है, इसीलिए हम लोगों को 10 विश लिस्ट जो प्रायोरिटी है वो लिखा गया, वो हमें करने को बोला गया, राइट, इन ईच सेशन. सो इफ यू सी, हर चैप्टर में हमें और क्लियर होने का इंडिकेशन देते हैं. एंड देन क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, यही बेसिकली वी हैव टू नो. बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो व्हाट वी वांट. घर तो चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, अगर पूछेंगे तो हाफ ऑफ अस डोंट नो. सो बेसिकली वी हैव टू बी मोर एंड मोर क्लियर. आप चाहे 5 ही चीज लिखो, बट बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट. ओके, थैंक यू सो मच. आई थिंक, आई मीन, दिस इज लाइक बैंग ऑन. जो चीज जो ये बुक करवाना चाहता है, आई थिंक दिस इज जस्ट द राइट एग्जांपल. But I have another incident also to share. I don't know, it happened. So it is my anniversary today and somehow I was in no mood of cooking. So I was like manifesting that I wish किसी के घर से अच्छा खाना आ जाए जो कि मेरे को cook नहीं करना पड़े. And it is again magical that I go down and I come to know that there is lunch coming from someone and there is dinner coming from someone. And I don't have to cook the entire day. Day. Okay, happy anniversary first of all. And yes, so are you understanding? अब इतना quick हो सकता है ये. Day 1 to day 12 was speed up first gear से second gear में ले जा रहे थे, और अब आप third fourth gear में जा रहे हो. Okay. But of course there is another thing. इसमें हम so I think Ritika Bhavi, she also does meditation. So I would seriously recommend meditation to all of you, क्योंकि meditation आपके power को, आपके thought के power को और fast करता है, उसको manifest करने में it really helps. So that's why meditation is recommended by a lot of people, क्योंकि वो हम लोगों को पता नहीं चलता how it is working, but it actually starts to work. क्लैरिटी लाता है, हमारे पावर, हमारे मेंटल थॉट पावर को इंक्रीज करता है. फिजिकल लेवल पे तो ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे फायदे. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस शेयरिंग. गुड स्टार्ट फॉर द सेशन. So now Thank let's close our eyes and we'll say the prayer.
To the Supreme God, we thank you. Thank you for all the blessings that you have given us. Thank you for all the blessings that are coming our way. And we thank you for the clarity that you are giving us. Thank you for the willpower to practice this continuously after the 28 days are over. Thank you for a joyful and a beautiful life. Thank you, thank you, thank you. Okay, so open your eyes, and who would like to read in English today? आज का chapter थोड़ा is like an eye opener for a lot of us, and but I think ये majority of us के लिए this is one issue that we face in our lives. Okay, we've done this 14, day 15. So हम halfway mark को cross कर चुके हैं. Okay, so who would like to read today? Okay, and is there anybody who would like to read? Priyanka, can I read? Yeah, you can. But before all of you all, before we go into the chapter, can you see the image? क्या दिख रहा है आप लोगों को image में? Picture of sound. A broken picture. Okay. Yes. तो अगर आप देखोगे दो इंसान के बीच में दरार है in the picture. Okay. So it's like a broken relationship. So today जो हम लोग we are going to be learning about is we are going to be talking about is difficult relationship. या जो टूटे हुए रिश्ते हैं या उन रिश्तों में जो जिनमें दरार बहुत ज्यादा हो गई है एंड वी फील कि वो हील नहीं हो सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, बट क्या एक्चुअल में ऐसा है? सो देयर इज मैजिक हैपनिंग अराउंड एंड लेट्स गो अहेड एंड रीड द चैप्टर. Day 15, magically heal your relationships. Okay. Day 15, magically heal your relationships. If you have a difficult or broken relationship from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for other person. Instead, we're busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. Okay, we'll just pause here. So, हमने कभी ना कभी, like I said, कि लाइफ में हमारे साथ कुछ हुआ होगा या रिलेशनशिप होगा जिसे हम somehow adjust नहीं कर पा रहे होंगे, या वो रिलेशनशिप इज जस्ट गोइंग बैड 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 एंड आप उस इंसान को अब आप कोई और तरीके से उस चीज को सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हो. इनफैक्ट यू वांट टू अवॉइड द पर्सन, या जब भी आप उसको देखते हो तो आपको बहुत गुस्सा आता है, या यू जस्ट कांट बी विद द पर्सन. ओके, तो कितने लोगों को ये ऐसा है, कितने लोगों के लाइफ में ऐसा कोई रिलेशनशिप है? आई वांट यू टू
टेक 30 सेकेंड एंड सी अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई रिलेशनशिप है. है ऐसा कोई रिलेशनशिप है? Let's not be unrealistic. I mean, this book is about ourselves. So at least we have to be honest about ourselves. Otherwise, हमारे life में changes हम नहीं ला सकते. I think there is 2 people writing in the chat. 3 out of 18. 4. देखिए एटलीस्ट हमें करेज होना होगा टू एडमिट टू आवरसेल्व्स. 5 6. अगर हम लोग खुद ही को एडमिट नहीं करेंगे कि ये एक एरिया है 7 ओके जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं 8. जब तक हम नहीं एग्री करेंगे हम लाइफ में चेंज नहीं ला सकते और वो हमें पेन फील होता रहेगा. सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट. आप उसको आप चाहते हो कि आप उसको एक अलमारी में बंद करके रख दो, उस रिलेशनशिप के सारे फीलिंग्स को, उस रिलेशनशिप को अवॉइड करो. बट ट्रस्ट मी, पास्ट ऑलवेज कम्स टू हॉन्ट अस. आप 2 साल उसको अंदर रखोगे, 5 साल रखोगे, 10 साल रखोगे, 15 साल रखोगे, बट it will come in one form or the other. The issues with the relationship will come back in one form or the other. So I think we have just 8 people. I think थोड़ा unrealistic है. I think there would be other people. What up to you. आप कितना admit कर पा रहे हो अपने लिए. So now yes, ये now my next question is, इन लोगों के लिए क्या आप, अगर मैं आपको अभी yes so bad relationship, I didn't say कि hate होना चाहिए. It could be that आप comfortable नहीं हो, मतलब एकदम भी comfortable नहीं हो कि आप avoid ही करना चाहते हो relationship. So that's a relationship not fair. Okay, so now my next question is कि अगर मैं अभी आपको बोलूं कि उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए तो कितने लोग कर पाएंगे? Okay. It's difficult. Yes, difficult. I have And can try. You've I have tried it? started doing gratitude after the magical book session. Okay. I have genuinely started and I'm feeling good about it. Don't want, yes. So this is what happens कि हम लोग करना ही नहीं चाहते, या ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में ग्रेटफुल होने का है क्या? एक्चुअल में क्या ग्रैटिट्यूड पॉसिबल है इस सिचुएशन में? दिस इज सो बैड. दिस इज द क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज द ये हमारा माइंड हमको बोलता है, राइट? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग. हम लोग इट्स लाइक हम लोग उस तरफ देखना ही नहीं चाहते बिकॉज वो इतना पेन, इतना गिल्ट, इतना हर्ट, you know, या मे बी क्रिटिसिज्म या इरिटेशन इतना लाता है टू द सर्फेस दैट हम लोग कुछ भी करेंगे टू अवॉइड इट. एम आई ट्रू और नॉट ट्रू? Right. Yes, ma'am. Yes. This is general human mentality कि हम लोग को कोई चीज अनकंफर्टेबल लग रही है तो हम लोग उसको अवॉइड करते, राइट? सो बट अगर हम उस कोई भी रिलेशनशिप के लिए कोई भी नेगेटिव फीलिंग रखेंगे, नाउ दैट विल बी कैरीड ऑन. वो हमारे ऑरा में, हमारे थॉट में वो फीलिंग आ गया है. नाउ इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप इस इंसान को साइड कर दो, अपने लाइफ से निकाल दो, बट वो फीलिंग तो आ गई है. नाउ इन फ्यूचर, सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि आप वैसे और लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको सिमिलर फीलिंग कराएंगे. नाउ हैज एनीबॉडी एक्सपीरियंस दैट कि आपको एक इंसान से प्रॉब्लम था, आपने उस इंसान को अवॉइड किया, वो बोलते हैं ना उस रास्ता आप गए ही नहीं, बट again in life somebody else came who gave you similar pain.
आप लोग क्या ये just can you go back and see अभी जो आपके लाइफ में है, just go back and see are there more, were there more such people? Okay, so 3 people said yes. Okay, so generally ये क्या होता है, हमारा पैटर्न बन जाता है ये फीलिंग जो है, बिकॉज वी नाउ नो कि अच्छा अगर ऐसे कोई इंसान आता है और उसके लिए हमें अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है, नाउ वी नो कि उनको क्या करना है, उनको एक ऐसे जगह डाल देना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जहां हम उनसे इंटरैक्ट ही नहीं करना चाहते, राइट? बट is that resolving the situation? That is not resolving the situation. It is like एक लाइन बन गई है और वो डीप होते जा रही है, एंड देन यू विल सी कि आप पीसफुल नहीं फील कर रहे हो, योर लाइफ इज गुड, आपके पास पैसा है, there are people around you who care for you, your health is okay, but gradually आप देखोगे कि you are not feeling peaceful, आपको एक रेस्टलेसनेस रहेगी, आपको एक एंशियसनेस रहेगी, एंड a lot of times एंगर रहेगा, एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये एंगर है कहाँ, क्यों और कहाँ से आ रहा है, so the root cause is somewhere else. So like जो गौतम बुद्धा ने कहा है, holding on to anger is like grasping a hot coal. और आप दूसरे को फेंकने जा रहे हो, पर दूसरे की तरफ फेंकने के लिए आपको खुद को तो उठाना पड़ेगा, अपना हाथ जलाना पड़ेगा. So that is what happens. दूसरे तक पहुंचा नहीं पहुंचा वो तो पता ही नहीं, बट खुद का हाथ तो डेफिनेटली जला. तो अब जब भी किसी पे गुस्सा करते हैं या किसी के लिए गुस्सा होल्ड करते हैं, बोलते कि नहीं, so this is what happens, most of the people are not aware, and वो क्या करते हैं, नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं हाँ आता है, बट छोटा मोटा वो तो, पर ऐसा नहीं है, हम उनको दिखाते भी नहीं. तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग जो ये बुक पढ़ रहे हैं, रोंडा अगेन एंड अगेन सेड इट इज अबाउट द एनर्जी. तो अगर आप उसको नहीं भी एक्सप्रेस करोगे, आप जब भी उस इंसान के पास जाओगे, आपके एनर्जी में वो जो गुस्सा का एनर्जी है, वो बोलते हैं ना, उबल उबल के बाहर आने लगेगा. यू विल स्माइल आउटवर्डली एंड यू थिंक वो सामने वाले को फील नहीं होगा, सामने वाले को भी कुछ ना कुछ फील होगा. मे बी वो पॉइंट आउट नहीं कर सकता, मे बी वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपने वर्बली कुछ नहीं बोला है, बट आपके थॉट में, आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में, पर वो कुछ ना कुछ वैसे बिहेव करेगा एंड आपका गुस्सा और ट्रिगर होगा. तो ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द वेज जिससे आप इससे बाहर आ सकते हो. तो लेट्स सी हाउ. आगे बढ़ते हैं लोग. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. Or if you're suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power. And despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness
she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and Go ahead. make a list. Should I say? Go ahead. Go ahead. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you've chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the ways things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. There is gold in every relationship, even the difficult ones, and to bring riches to all your relationships and your life. You have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Okay. We can pause Name, it before we go ahead. तो बेसिकली अब आपको जो लास्ट हमने जो किया था दैट वाज अबाउट क्लोजेस्ट रिलेशनशिप जिसको हमने फोटो फोटो लेके वी ट्राई टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर देम and one more thing that we did was relationship. Think back of people who made a difference in your life. So हमने again relate, that was also a kind of relationship task only, जिसमें आप ग्रैटिट्यूड ऑलरेडी एक्सप्रेस कर रहे हो उन लोगों के लिए जिनके साथ आपका रिलेशनशिप कॉर्डियल है. बट नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप जिसमें आप यू विल टेक रिलेशनशिप जो अभी ठीक नहीं है या बहुत ही खराब है या मतलब वट एवर स्टेट इट इज इन, डेफिनेटली वो अच्छा तो नहीं है. ओके, सो इट कुड बी द वर्स्ट रिलेशनशिप इन योर लाइफ. तो जो भी है आप उसको लोगे एंड देन आप उस रिलेशनशिप के लिए 10 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करोगे. तो नाउ व्हेन यू डू दिस, आपको भी एग्जांपल भी हम लोग वो पढ़ेंगे हाउ डू यू हैव टू डू इट. नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू दिस, माय सजेशन इज दैट कि अगेन आप जब ये करोगे आधा घंटा अपने आप को अलोन रखिए एंड आपका माइंड आपको यही बोलता रहेगा कि क्या है अच्छा इस रिलेशनशिप में, क्या 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 चीज के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो द थिंग इज आप उस समय जाइए इतना बुरा नहीं था, उस समय का भी आप कुछ ढूंढ पाओगे. दूसरा, हर इंसान में कुछ ना कुछ गुड क्वालिटी होती है. तो वील फोकस ऑन दोज गुड क्वालिटीज एंड उस that can be a part of our gratitude list. So let us see कि ये कैसे express कर रहे हैं. Let's read. name, I'm grateful for what? Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot and I'm so much wiser today. And I use what I learned from our marriage in many of my relationships today.
Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. By the time you finish your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. If you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously after your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefit in their whole life. Okay. So these are the examples. Now, this is this is what I want all of you all to pay attention. हम लोगों का ultimate goal क्या है कि ऐसा स्टेज पे पहुंचना जहां उस इंसान के साथ रिलेशनशिप रिजॉल्व हो गया. नाउ आई नो अ लॉट ऑफ यू विल हैव क्वेश्चन कि क्या वो इंसान अभी वो जिंदा नहीं है, वो हो सकते हैं, वो इंसान अब हम मिलते नहीं है, क्या उनको ले सकते हैं? यस यू कैन, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट दैट पर्सन, इट इज अबाउट हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, जो कड़वाहट है उस रिलेशनशिप के लिए, वो हमें हटा. So gratitude is one of the ways जिससे आप वो कर सकते हो, and you will continue this for several days if required, or as long as it requires. Still आपको उस इंसान के लिए कोई खास negative feeling या इनफैक्ट कोई negative feeling नहीं रह गई है, and you are neutral to the person. And अगर आप के लाइफ में है, सामने है वो इंसान, तो आप देखोगे कि सडनली उस रिलेशनशिप में चेंजेस आने शुरू हो गए. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. सिर्फ one person is enough. It doesn't need the other person. Okay, so please don't say कि वो ऐसे कर रहा था इसलिए मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी, वो ऐसे कर रहा था इसलिए मैंने ये ऐसे बिहेव किया. It is about how we are going to behave and how we are going to react. And gratitude will help us in that. We want peace, right? अगर वो सामने वाले को peace चाहिए होता तो they would also be doing a session like this, or they would be also doing a practice. तो हम लोग like I said, हम लोग सामने वाले का तो we can't take control of that. We just have to take control of our feelings and actions. आगे बढ़ते हैं. If you choose a past relationship where you are not in contact with a person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties
before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you've chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay. So basically इसमें last which I really want to emphasize कि अगर आपने कोई past relationship choose किया है, like I said ना कि वो relationship हो सकता है बहुत पहले हुआ, but हम लोग we will not feel peaceful. उस relationship के कारण we will have anxiety. In fact, I was healing a case, and she said कि she's not able to sleep at night, and she's filled with anxiety. Now, anxiety basically, when I was trying to heal her, I understood she was coming from her whatever happened in her past relationship. So then, once you start working on that, you start. So then, when we started to heal, and when I asked her to do all this, she started to feel more peaceful. That's what will happen. आपको peaceful and you'll feel happy. एंड अगर फ्यूचर में ऐसे ही रिलेशनशिप आते हैं बिकॉज दिस इज लाइफ एंड वी मे हैव क्योंकि हमने क्या किस तरह के थॉट प्लांट किए हैं पास्ट में वी डोंट नो वी मे अट्रैक्ट सच रिलेशनशिप्स तो वी नो व्हाट टू डू नाउ ओके सो थैंक यू रोहिणी जी फॉर रीडिंग एंड आई होप आज का ये क्लियर है प्रियंका there's one doubt. I just wanted to ask, जो हम लोग अगर repeat करना है, समझो if we do it this continuously, so great, जो हम लोग grateful gratitude show कर रहे हैं, it can be different or we can repeat the same 10. It can be different, or you can basically इसमें you can repeat some also, and it can be different also, mix कर सकते हो, so that जितना मतलब basically different जितना हो उतना better है, क्योंकि आप जितने चीजें ढूंढ पाते हो जिसके लिए आप grateful हो सकते हो, आपकी feeling of gratitude will increase. Because what happens is sometimes the same चीज आप जब read करते हो, after a point of time वो आपको same emotions नहीं सेम इमोशंस नहीं आते मे बी एक बार आपको यू फेल्ट हैप्पी सेकेंड टाइम यू फेल्ट हैप्पी बट थर्ड टाइम आपको लगेगा अच्छा ठीक है ओके तो इसलिए डिफरेंट हो तो उतना ही बेटर है ताकि हम लोग बेसिकली वो क्या है इट्स लाइक आपके पास डायमंड्स और कंकड़ है एक प्लेट में और आपको डायमंड्स चुनना है तो आपके रिलेशनशिप में मिक्स्ड टाइम्स होंगे अच्छे टाइम्स भी होंगे बुरे टाइम्स भी होंगे आपको अब वो अच्छे टाइम्स ढूंढ निकाल राइट any more questions Okay, but we don't have to write right we don't have to mention what we want exactly from the relationship. वो तो I think it's नहीं आगे in future how we want that relation to outcome. You want it to be harmonious, right? Mostly we want it harmonious. तो आप वो भी लिख सकते हो because I think it was given in one of the chapters where it was said कि thank you for a harmonious relationship with my whatever. आप ये लिख सकते हो अपने wish list में. Okay, but not in this gratitude list, what we have to write today. नहीं, this basically उस relationship में आप क्या-क्या चीज है आपके लिए gratitude. Okay. Because that's a wish. Okay. No? जैसे जो gratitude अभी है या gratitude हम चाहते हैं. नहीं, gratitude आपको feel Hello? करना है. Gratitude आपको feel करना Hello? है. Hello.
I can hear you. Can you hear me? Hello. Yeah, who is this? Okay, I think they can't hear me. So, anyways, gratitude आपको feel करना है, इसलिए आपको अच्छे times या अच्छे incidents को याद करके लिखना है. लिखने से it changes this one. Like today when I was doing the gratitude का practice, blessings वाला, I have अपने mind में I have expressed gratitude, but then when I was writing, वो क्या हो रहा था, point पे point आए जा रहा था. So you know, that's why writing is much better than just thinking. Writing के बाद उसको आप feel करिए ना. So I always feel writing is the best exercise in expressing gratitude. I mean, this is my this one, and that's why I think she has included कि हर दिन आपको 10 blessing लिखनी है. Okay, so let's go Excuse read. me, Yes. ma'am. For one person in one time, no? After that, Yes, पहले ideally आप एक relationship को solve करिए, तब आपको once you become, मतलब ये solve हो जाएगा ना, then you will know that it works. फिर आप same formula apply करिए दूसरे relationship. okay. Let's read in Hindi. So who would like to volunteer? Anybody who would like to volunteer? Hindi. Okay. So I will read Hindi. 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं. यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं. ओके, तो अभी हमारा पुराना पैटर्न क्या है कि हम उस चीज के लिए गुस्सा या एंगर, हेट्रेड, या हम लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं, राइट? दैट इज द करंट सिचुएशन. बट अब उसको हम लोग को चेंज करना है. एंड व्हाट इज द वे? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता. कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी. चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो. तो ये sometimes if you see, most of the times husband wife के बीच में first year second year is very harmonious. Okay, उसके बाद क्या होता है, when you start to live together, जैसे आप पास रहते हो, जितना आप एक दूसरे को जानते हो, धीरे धीरे कमियां दिखने लगती है, और फिर धीरे धीरे हम सिर्फ उन कमियों पे ही फोकस करते हैं, और वो क्रिटिसिज्म माइंड में चलते रहते हैं. अरे टॉवल जगह पे क्यों नहीं रखते हैं, इतना खाना खाने टाइम पे नहीं आते हैं, या हमेशा ये चीज भूल के घर से भूल के चले जाते हैं. जो मैं बोलती हूँ वो एक बार में करते ही नहीं है, याद ही नहीं रहता है, 2 बार याद दिलाने के बाद भी याद नहीं रहता है. ट्रू और नॉट ट्रू, ऑल द मैरिड पीपल? यस, नो? True. राइट, दिस इज व्हाट हैपेंस. एंड फिर आप धीरे धीरे देखोगे, एक दूसरे के साथ हम पेशेंस लूज करने लग जाते हैं. एंड देन इरिटेशन, एंड देन आउटबर्स्ट, एंड देन whatever. Okay, then sometimes for some people it becomes very difficult. For some people खट्टा मीठा है. So as long as खट्टा मीठा है ठीक है. पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड आपको समझते ही नहीं है, आपको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, या सुनते ही नहीं है, then please practice gratitude. Okay, now this also happens in business or office. Sometimes कोई client आएगा and maybe they do some things like ऑर्डर दिया, फिर बोला कि अच्छा छोड़ दो, नहीं करते हैं, या हर बार 4 बार बुलाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, फिर ऑर्डर नहीं देते हैं, या हो सकता है पेमेंट के लिए फंसाते हैं. तो हमने क्या किया, उस इंसान के लिए एक आइडिया क्रिएट कर लिया, नेगेटिव थॉट, एंड फिर उसको रिपीट करते जाते हैं, एंड फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो कस्टमर और डिफिकल्ट बनते जाते हैं. राइट, सेम थिंग मे बी कलीग होगा ऑफिस का, मे बी योर बॉस,
and this becomes a difficult relationship. तो अगर आप if you go backtrack and then you see ये कहाँ से शुरू हुआ, then you will also see कि आपने कौन सा बीज बोया था, आपने क्रिटिसिज्म का बीज बोया था, आपने इरिटेशन का बीज बोया था, और अब आपको उसका फल मिला। एप्पल का बीज बोया था, एप्पल मिल रहे हैं, बट सड़े हुए एप्पल मिल रहे हैं बिकॉज अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं बोया था। ओके, सो दैट इज व्हाट हैपेंस। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला है। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होते जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। राइट, सो लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एक बोझ बन जाता है। ऐसे लगता है आप सुबह से शाम कर रहे हो, अपने आप को ढो रहे हो, और शाम को ऐसे आप टायर्ड हो जाते हो कि सॉरी कुछ और हैंडल करने का, और आपको ऐसा लगता है और अब कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, बहुत बोझ ऑलरेडी है, बहुत इश्यूज ऑलरेडी है। राइट, अगर हम इफ यू आर सेइंग दीस स्टेटमेंट्स, यू हैव टू स्टार्ट, मतलब यू हैव टू स्टॉप नाउ। स्टॉप सेइंग बोझ है, स्टॉप सेइंग मुझे और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम भी तो हमने ही अट्रैक्ट की है ना। तो स्टॉप सेइंग प्रॉब्लम हमें नहीं चाहिए। यूनिवर्स विल नॉट अंडरस्टैंड कि नहीं चाहिए, they will just understand problems. What are you feeling about problems? तो आप अच्छे नहीं फील कर रहे हो, then by law of attraction, मतलब आप उतना ही उसको बुरा बार बार फील कर रहे हो, तो by law of attraction आप वही और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। चाहे वो संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हो, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाती हैं। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देता है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चे के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। Okay, so Roma, it can be the same thing also. Like here, saying कि every day आप gratitude feel कर सकते हो. I think not Roma, Rohini जी. So every day आप same चीज के लिए gratitude feel कर सकते हो कि your kids like this one, कि आपके बच्चे हैं and वो उन्हीं के कारण आपके जीवन में है। तो उसके लिए आप जितना gratitude feel करोगे, आपके feeling में चेंज आए। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को भी उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप अननोइंगली अपने बच्चों पे वो ट्रांसफर करोगे। हो सकता है आप उनको बोलो नहीं, उनको वैसे सिखाओ नहीं, पर जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो स्लोली उनमें ट्रांसफर होगा। ओके, क्योंकि ये एक एनर्जी है और बच्चे भी एनर्जी को समझते नहीं है, बट दे फील इट, और आप वही एनर्जी उनपे ट्रांसफर करोगे, क्योंकि वो आपको देखेंगे कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप कैसे क्या थॉट्स, आप किस तरह के वर्ड्स आप बोल रहे हो। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी है, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती है। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों तक की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए जीवन के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगे। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उन्होंने उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। सो दिस इज एक्चुअली मैजिकल, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स हमारे अंदर कुछ ऐसे ख्वाहिशें होती हैं, कुछ ऐसे विशेष होते हैं जो हम करना चाहते हैं, कुछ चीजें हम सीखना चाहते हैं, बट हम कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ वट एवर। नाउ इन्होंने जैसे जैसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, वो चीजें उनको याद आने लगी, एंड शी स्टार्टेड टू स्पेंड हर टाइम इन दैट। एंड देन उनके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए where she could learn and do whatever she was always wanting to do, but उस समय उनको टाइम नहीं मिलता था। Now this is what I will say, because sometimes when one person passes away from our life, हम उस चीज को सेंटर बना लेते हैं और उस चीज का दुख कैरी करते रहते हैं। बट इफ यू अंडरस्टैंड दैट जन्म लेना और मरना इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, राइट? ये हमारे लाइफ में एक ट्रूथ है। जो जन्म लेगा वो कभी ना कभी ये संसार छोड़ के जाएगा। ये हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, whereas we see it every day around us, but हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। एंड पूरा लाइफ उस दुख में हम बहुत लोग उस दुख को सेंटर बना लेते हैं अपनी लाइफ। बट देन यू अंडरस्टैंड कि गॉड हैज गिवन ईच वन अ लाइफ, एंड उसके साथ हमारा कुछ पर्पस है। हम यहाँ नीचे नहीं आए हैं कि हम सिर्फ दुख अपने लाइफ में रखें। So if something has happened and we have to part with somebody, that is not the end of life. Life has to move on, and आपको अपने लिए एक पर्पस ढूंढना होगा। आप मीनिंग ऐड कर सकते हो फॉर पीपल अराउंड यू, बट अगर आप ये सोच के देयर इज पावर, देयर इज लव, देयर इज इंटेलिजेंस इन ईच वन ऑफ अस, बट हम अपनी सोच की लिमिटेशन को हम अपनी लिमिटेशन समझ लेते हैं, और हमें लगता है नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, या अब तो इतना टाइम बीत गया, अब क्या करेंगे, अब सीख के क्या करेंगे। बट प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी चीज सीखा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। Okay, so I know of somebody who lost her husband, and she had 3 kids. She raised her 3 kids, and I think she must be around 50 plus. She's married 2 kids. One child is still like working and setting up his business, and she is participating in dramatics. स्टेज शोज कर रही है इन दिल्ली, कोलकाता एंड अदर प्लेसेस, एंड बहुत अच्छा काम कर रही है। शी फाउंड अ पर्पस फॉर हर लाइफ। आई मीन, आई वाज सो अमेज्ड एट व्हाट शी वाज डूइंग, बट आई एम श्योर उनको बहुत पीस मिल रहा होगा, बहुत हैप्पीनेस मिल रहा होगा, बहुत जॉय मिल रहा होगा इन डूइंग दैट। एंड एट दैट एज शी हैज गॉट अ ब्रेक थ्रू एंड शी इज डूइंग स्टेज शोज।
again because of COVID abhi stop ho gaya, but are you understanding? I mean, I was amazed at when I heard that she's doing something like this, because most of the time at the age of 50 people think कि अब और क्या रखा है लाइफ में, बस मेरा बेटे की शादी हो जाए, वो जीवन में सेटल हो जाए, बस यही देखना है. अरे that is your son's purpose, that cannot be your purpose. Okay, and understand, क्या आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपका बेटा या बेटी हर वक्त सही डिसीजन लेगा, या आप वहीं पे एक पुलिस की तरह खड़े रहोगे ये देखने के लिए कि आपका बेटा बेटी सही डिसीजन ले रहे हैं? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल. सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो गिरेंगे भी, संभलेंगे भी, उठेंगे भी और चलेंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी. हमें बस ये देखना है कि that is the kind of thought we create for our children. Okay? Because sometimes ये लगता है कि छोटे बच्चे हैं, उनको हर चीज हमें करवाना है, and then if you see, they become very dependent on us, and we feel अच्छा ये नहीं कराया हमने तो यही बोलेगा कि मम्मी पापा ने नहीं कराया था, या whatever. But you understand कि अगर उसका वो डेस्टिनी है तो वो अपने आप उस तक पहुंचेगा, अपना रास्ता खुद निकालेगा. So I was just reading this UK's Got Talent, I think it was UK's Got Talent, and there was an Indian there, and वो लड़का 26 years का था, and he was playing, he came, उन्होंने वो एक फ्लूट का म्यूजिक एक पीस परफॉर्म करने आया था, and he said he started to learn it when he was 21. मतलब 5 साल ही हुआ था उसको लर्न करते हुए, और वो यूके's Got Talent में he was in, I don't know which place, but he went to perform and he was showcasing his talent in front of the whole world. So you think कि आप अगर 6 साल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो या 6 साल से कोई चीज का रियाज करा रहे हो तभी वो बच्चा सक्सेसफुल होगा? I think that thing just changed my mindset कि I think we are just, हम लोग अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं कि हम नहीं सिखाए, हम नहीं ट्रेन कराए, हम ये नहीं कराए. It is not about, everything is not about हमने क्या करा. Of course we try our best, but कुछ चीजें बच्चे की खुद की अपनी डेस्टिनी, अपने चॉइस. So that guy decided to learn flute at the age of 21. 5 साल उसने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत पैशन था, and then he went on to go into that competition. So purpose find करना हमारा काम है. Everyone in the life has purpose, and please remember, सिर्फ बच्चे पैदा मतलब सॉरी फैमिली रेज करना या अर्न करना, ये देखना कि आपके बच्चों की शादी हो गई, ये सिर्फ आपका पर्पस नहीं हो सकता. ये तो आधा से ज्यादा दुनिया कर सकता है. तो ये पर्पस कैसे हो सकता है हमारे लाइफ का? पर्पस इज डिफरेंट. ओके, दीज आर आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट दिस इज नॉट probably, I mean, my understanding is that सिर्फ ये हमारा पर्पस नहीं हो सकता. ये भी एक पर्पस हो सकता है, बट सिर्फ ये नहीं. तो आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं. कोई ऐसा मुश्किल, समयाग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में वर्तमान में है या ये अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है. बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें. संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों का विचार करें. इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले परिस्थितियों पर गौर करना है. यदि संबंध कभी अच्छा ही नहीं रहा था तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे. तो मैंने बोला ना कि अगर वहां कोई सिचुएशन कुछ बेटर नहीं है तो आप एटलीस्ट उसके कोई गुण, कुछ ना कुछ तो
गुड क्वालिटी होता ही है हर इंसान में, उसमें हमें फोकस करना होगा। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस कदम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के लिए के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज ले, तो उसे लिख ले, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। तो हु एंड व्हाई। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से ही कई अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसे इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों में वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, हर रिलेशनशिप में हमारा एक लेसन है। लेसन यानी हमें उससे कुछ सीखना है। क्या सीखना है या क्या सीखा है उस रिलेशनशिप में, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। दैट इज समथिंग टू बी ग्रेटफुल अबाउट। क्योंकि हो सकता है वो रिलेशनशिप हम इसलिए अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किए हैं बिकॉज हमें वो चीज सीखनी थी। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी पेशेंस, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी मेच्योरिटी। हम पहले इतने मेच्योरली नहीं बिहेव करते थे, बट बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप वी बिकेम अ लिटिल मोर मेच्योर्ड इन द वे वी हैंडल थिंग्स। तो वट एवर इट इज, हम देयर इज ऑलवेज अ लेसन छुपा हुआ है। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में मैं आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हो। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी पिता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। ओके, सो आइडियली आपको अच्छा फील होगा। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उस भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई संबंध को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारी ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके प्रति लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब
उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। ओके, so finish this chapter. Any question? Okay, so while reading this chapter, आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स मिले कि आप उस सिचुएशन के लिए क्या-क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं? ओके, आई होप आपको 2-4 चीज तो मिले होंगे, राइट? क्योंकि हर रिलेशनशिप में हम अभी तक उस रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ बुरा सोच रहे थे, बट डजंट मीन कि उस रिलेशनशिप के बारे में अच्छी चीजें नहीं है। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अग्री, नॉट अग्री? So everyone is quiet. I don't know. Maybe ये एक्चुअली ऐसा टॉपिक है जो बहुत डिस्टर्ब करता है। So yes, maybe आपको ये सोच में डाल सकता है, but we need to get out of this. ये सिचुएशन हमें लाइफ में से रिजॉल्व करनी होगी। और अगर आप देखोगे, आप एक गुत्थी को सुलझाओगे, बहुत सारी गुत्थियां जो आपके लाइफ में है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। Okay, now another thing that we do for this is forgiveness. यानी हम उनको क्षमा करते हैं for all those incidents जो हमें जिन चीजों के लिए हम दुखी हैं। So for that we also do a practice at 3 o'clock. So if you want, I can just put a Zoom ID. आप उसमें participate कर सकते हो and start forgiving the person. Okay, ये आप कर सकते हो। मैम, ये रिलेशनशिप वाला कितने दिन तक लिखना है? जब तक आपको उस इंसान के प्रति जो भी नकारात्मकता है वो नहीं चले जाए। ओके, एवरी डे आप कर सकते हो उसको। यस, अच्छा, एवरीडे। ओके, सो लेट्स एंड टुडेज सेशन। क्लोज योर आईज। To the Supreme God, we thank you for your light, love and power, so that we may be able to solve our relationship and harmonize them with love, compassion, patience, tolerance, mercy, and inner forgiveness. We thank you for all of these blessings. Thank you for beautiful relationships in our life. Gently open your eyes. Thank you so much, everybody. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, madam. See you all tomorrow.